hello and namaste everyone. It's me Urusha Pandey here. Welcome to the Urusha Dynamic. First of all, thank you so much everyone. You all are commenting such a good things about our show. So thank you so much. We are getting so many compliments and it's just two episodes that we are going on and the way you love, oh my god, it means a lot. So, like always, we open the show in the name of Ganesha. So, Jai Ganeshaya Namaha. And as always, we are having such a great guest today also, who is the owner of the Bollywood Abhinay, who is the director in Bollywood. And he is not only the director, the great filmmaker, awarded filmmaker in Bollywood. And he have inspired so many young stars in India through his Academy Bollywood Abhinay. So I hope he's here and yes, so let's welcome him and share his incredible journey. So let me tell you that he is a very inspiring person, so don't go anywhere because you will learn so many things from today's interview. I'm sure that, and he will tell his journey, how he was working hard as a filmmaker in Bollywood. So I'm so excited, and he's also my teacher, and he have I have learned a lot from him, and in acting as a filmmaker also many people have learned from him. And he's not only the filmmaker, and he's not only the teacher and all that, he's also the doctor. So uh he's incredible, seriously. So I'm just waiting if he's here. Okay, hi sir. Finally. Can you on see me? Yes, yes, yes. Can you see me? Yeah. Sorry Yes, for the delay. it's And okay. And sorry from my side too. I think so. आपका थोड़ा हेड कट रहा है तो थोड़ा आप पीछे हो जाइएगा. sure, थोड़ा sure, आपका sure, हेड कट sure. रहा है. Yes, like that. ठीक. I hope I'm also Okay. looking fine क्योंकि Yeah. एटलीस्ट हमें दिख You सही है. yes, you Yeah. you always you always look fine. Thank you, sir. So welcome to the Ursa Dynamic. And I'm so honored to have you, sir. Same here. Same feeling here. And मतलब I think everyone that you are such an inspiration, and you are the teacher of mine also, and you are the chairman of Bollywood Abhinay, and through Bollywood Abhinay आपने बहुत लोग को इंस्पायर किया है, गाइड किया है, and not only that आप एक डॉक्टर भी हो, not only that आप 3 decades से बॉलीवुड में हो एज द फिल्म मेकर. सो आई एम सो हैप्पी कि आप जैसे इंसान मेरे शो पे आए हैं. एंड but I want to know, sir, the way you inspire everyone, who is your inspiration? you Oh, the so the sweet. the the people who ask me to inspire them, basically they are my inspirations. देखो, Okay. कभी एक एक तरफ से चीज नहीं होती ना. Yes. जब Yes. मैं ये तय करता हूँ कि आज मुझे मोटिवेशन का ये लेक्चर लेना है, तो आप लोग उस समय आते हो हॉल में या ऑनलाइन. पर जब मैं Yes. तय करता हूं कि कल मुझे इनको मोटिवेट करना है, तो उसी समय से मैं मोटिवेट हो जाता हूं. Wow. सो हाँ. मेरा मोटिवेशन की या मेरी एनर्जी का सोर्स जो है वो आप लोग हैं. Thank you, sir. सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि Okay, sir. ऐसे टाइम पेंडेमिक के समय आपका चैनल, ये जो डायनामिक चैनल है, ये जो डायनामिज्म है और डायनामिक ढंग से ये काम कर रहा है, ये जो लोगों Yes. को इंस्पायर कर रहा है, लोगों को सच्चाई बता रहा है, लोगों को हेल्दी रख रहा है, और आप जो नेपाल में बैठकर पूरी दुनिया को जो जोड़ने का काम कर रही हो, ये चीज मुझे इंस्पायर करती है. आपकी ईमानदारी. और सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, आप यू आर पार्ट ऑफ बॉलीवुड अभिनय एंड यू विल बी पार्ट ऑफ माय फ्यूचर प्रोजेक्ट, दैट इज फॉर Yes. श्योर. आपके बारे में खासियत पहले मैं अपने सारे दर्शकों को बता दूं कि मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट प्रोफेशनल एंड वेरी नेचुरल एक्टर. Thank you, sir. सो ये तीन क्वालिटी जो है वो हमेशा इंप्रेस करती है. आप देखती कि जब भी आपका फोन आता है, या चाहे मेरी अभी भी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो जब भी आपका फोन आता है तो मैं सबको होल्ड करके आपका फोन उठाता हूं, क्योंकि आप देखिए ना, नेपाल में बैठकर आप सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रही हो बहुत अच्छे ढंग से.
वो इनक्रेडिबल है. So thanks to you, thanks to your dynamic channel. God bless you all. Thank you, sir. And I'm also honored because, I'm also in this field since 3 years. And I'm being honest with you, I never met a person like you. And the way you encourage everyone, the way inspire everybody, जो भी newcomers होते हैं. I mean, some people are there जो, like they treat like you know nothing. But the way you like कि कोई भी आता है, you show that you have that special in you. So anyway, so let's start talking about your filmmaker, जो आप कैसे filmmaker बने, your journey. So I want to know कि आपने ये filmmaking कैसे pursue किया? ओके. मेरे परिवार Yes. वालों ने मेरी तैयारी फौज में जाने के लिए की थी. Yes. ओके. बट मैं कॉलेज में, आई एम हार्डकोर मुंबईइट्स, born and brought up, completed my education here in Mumbai. Basically I'm from Haryana. बट कॉलेज में मैं थिएटर करने लगा था. एंड कॉलेज के फाइनल ईयर में आई मेट सूरज बड़जात्या. और बाद में दिस सूरज बड़जात्या जी विल बिकम माय टीचर, माय गुरु, एंड हिज फादर एंड हिज ग्रैंडफादर. सो आई वाज सो लकी दैट कॉलेज कंप्लीट करते ही आई जॉइन राजश्री प्रोडक्शन एंड वी स्टार्टेड Wow. मेकिंग मैंने प्यार किया. एंड Wow. whatever I am today, it's because of Suraj Badatia ji, Rajkumar Badatia ji, and Tarachand Badatia ji. Hmm. They were the people who changed course of my life. Wow. So, जी. you are someone, सब filmmaker के ना एक special way हो, मतलब एक special तरीका होता है, एक special गोरा होता है, मतलब they have one type of filmmaking journey. But आपका जो है, you make all kinds of movie. राजश्री से family type की movie बना देते हो, सलमान खान फिल्म से action movie बना देते हो, फिर आप फिर से romantic movie बना देते हो. So how you do all these types of movie? See, तभी मैं इंटरवल्स में काम करता हूँ. Hmm. आई डोंट मेक फिल्म एवरी फ्राइडे. Hmm. देखो, किसी भी फिल्म मेकर को फिल्म कब बनानी चाहिए? जब वो Hmm. फिल्म उसके अंदर जिंदा हो, जब वो Hmm. स्टोरी उसके अंदर जिंदा हो. करेक्ट. मैंने जो फिल्म मेकिंग सीखी, वो फिल्म सीखी लव स्टोरी एंड फैमिली सिनेमा. Yes. ओके, वी मेड मैंने प्यार किया, वी मेड हम आपके हैं कौन. देन आई Hmm. शिफ्टेड टू सलमान खान प्रोडक्शन. वी मेड औजार एंड प्यार किया तो डरना क्या. Correct. Hmm. Then I started my own journey. I started with what? I started with again family film, family romantic film. That is Hum Tum Pe Marte Hain. Hmm. And then for my family reason, I had to go back to Haryana. I was there for a few years. Hmm. And फिर मुझे पता चला कि मेरे कुछ ऐसा हुआ है. Then I made one semi-art film called चोट with आशुतोष राणा जी. मेरा ऐसा मानना है कि एक फिल्म मेकर को तब तक फिल्म नहीं बनानी चाहिए जब तक उसके अंदर वो फिल्म जिंदा ना हो. Yes. तो see, it's my first generation in Bollywood. So Hmm. in my this generation, life जैसे टर्न्स एंड ट्विस्ट लेती गई और वो सब जो एक्सपीरियंस अंदर कलेक्ट होते रहे, उसी पे एक फिल्म मेकर फिल्म बनाता है ना. तो जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस कलेक्ट होते जाते हैं और मुझे एक दिन लगता है कि अब ये एक्सपीरियंस ऐसा है कि जिससे हम दुनिया को कुछ एक अच्छा सबक दे सकते हैं, फिर मैं उस दिन फिल्म बनाने की सोचता हूँ. जैसे 2014 में जिस फिल्म के लिए हमको नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दादा साहब फाल्के ट्रॉफी का अवार्ड मिला, Yes. Yes. वो फिल्म का टाइटल है 90. Hmm. अब मुझे ये लगा कि यार, मुंबई जो कई लोगों को रोड पे से करोड़ पे पहुंचाती है, Yes. आई कैन से मुंबई इज माई मदर. अब उसके ऊपर किसी भी तरीके का घात होता है तो वो दिल को बहुत ठेस पहुंचाता है कि ऐसा क्यों होता है. तो Yes. उसी की सोच में मैं गया, उसी की सोच में पड़ा रहा कि ऐसा बार बार ये मुंबई पे क्यों होता है. और फिर पता चला कि यार, ये पूरा जो खेल है वो 90 मिनट्स का है. Hmm. तो फिर मैंने वो टाइटल रखा 90. और Yes. पोस्ट टेररिस्ट अटैक थ्रिलर है 90, Hmm. जो फिल्म हमने बनाई जिसको अवार्ड मिला.
तो फिल्म मेकर को या हर कोई इतने बड़े मेकर है, सबको पता है कि जो बात आपको अंदर से बार बार सताए, सोने नहीं दे, उस पर आपको फिल्म बनानी चाहिए। चाहे अभी बनाओ, चाहे रोज बनाओ, चाहे 10 साल बाद बनाओ, चाहे 50 साल बाद बनाओ, अगर आपके अंदर फिल्म नहीं है तो आपको वो फिल्म नहीं बनानी चाहिए। फिर Yes, उस फिल्म में yes, सोल नहीं आएगी। अभी देखिए, yes, जिस रात को हम लोगों को दादा साहब फाल्के ट्रॉफी अवार्ड मिला था, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, उस रात को जब मेरी पूरी यूनिट खुश थी, ऑफकोर्स yes, खुश होना भी था, वो 3-4 साल से फिल्म बना रहे थे। yes, उसी रात जो मेरे अंदर एक पेन चल रहा था सालों साल से, yes. वो पेन यही था कि जो ये एक्टर्स आते हैं मुंबई, या जो मुंबई के Hmm. एक्टर्स हैं, या जो ग्लोब से आते हैं, उनको एक सही ढंग से, मैं जितना जानता हूं उस ढंग से मैं उनको मोटिवेट कर सकूं, मैं उनको सही राह। मैंने तय Hmm. किया कि आज से मैं अपनी खुद की एक एकेडमी शुरू करूंगा, Yes, जो हर एक टैलेंटेड आदमी के लिए होगी। जिसके yes, पास yes. पैसा है उसके लिए, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए। तो Hmm. यहाँ से मैंने वो अपनी बॉलीवुड एकेडमी की शुरुआत की। मैं और इसके Yes. बारे में बताऊंगा। So, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कोई सवाल चल रहा है जो आप मुझसे पूछें। yes. So basically, when you get the award, तो जब आपने अवार्ड, क्योंकि बेसिकली व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, कि आपको क्या लगता है कि एज अ फिल्म मेकर अवार्ड इज आल्सो इम्पोर्टेंट, और नॉट, बिकॉज यू गेट द अवार्ड, एंड देखिए हाउ देखिए यू फील अबाउट दैट? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहला अवार्ड गॉड आपको देता है कि आपकी फिल्म थिएटर तक पहुंची। दैट यस, इज योर फर्स्ट अवार्ड। सेकेंड यस, अवार्ड, अगर पब्लिक को आपका सिनेमा पसंद आ जाता है, उससे बढ़कर कोई और अवार्ड है नहीं। यस, तो मैं यस. बिलीव करता हूँ कि वो सबसे बड़ा अवार्ड है। Yes, true, true. So here some people who don't understand Hindi. He's the great filmmaker in India, and he also have won the Dada Saheb Award. So that's what he's talking about. Okay. So and yeah, so that's what he's talking about. So Harshal is asking, which is your favorite genre? So wait, what he's saying? Okay, my favorite Ah, genre, it's not yes, one, it's two yes, genres. yes. One is, I believe in United We Stand, and I believe in, uh, sorry to say, but I believe in uh, the family culture. Hmm. I believe in romance. Hmm. So my favorite genre is romantic films. Nice, Okay, nice. and the second genre is organized crime. Hmm. These are my two favorite genres. सो व्हाट यू थिंक सर, एक फिल्म डायरेक्टर के लिए क्या इम्पोर्टेंट क्वालिटी होना चाहिए? फिल्म डायरेक्टर के लिए एक ही क्वालिटी होनी चाहिए, उसको कोई टेक्निक का पता नहीं हो चलेगा, उसे स्क्रिप्ट नहीं लिखनी आती हो चलेगा। एक ही चीज उसके अंदर होनी चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है, यस. व्हाट ही वांट टू कन्वे, कितना वो हम्म. एंथू है, दैट्स इट। हम्म. So since you are in Bollywood, I think since 3 decades, so आपने चेंजेस देखा है, पहले कैसा था अब कैसा है, हाँ you हाँ। have seen the changes. So आपको वो टाइम का क्या चीज पसंद है जो अभी नहीं है, और अभी जो है उस टाइम पे नहीं था, तो अभी क्या पसंद है आपको, मीन्स that time what you like that now we don't have. नो, आई डोंट थिंक सो। देखो, Hmm. परिवर्तन संसार का नियम है। Yes. एवरी सेकंड एवरीथिंग इज चेंजिंग, Hmm. so we have to change according to the situation, according to the time। देखो, अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हर लोग बोल रहे थे कि हमें डिजिटलाइज होना पड़ेगा, डिजिटलाइज होना पड़ेगा। बट क्या हुआ मार्च के बाद? इस कोरोना ने सबको डिजिटलाइज कर दिया। Yes, अगर true. अगर
अगर उरुषा जी हम ये डिजिटलाइजेशन को और अभी की चीजों को अगर नहीं समझेंगे तो हम पीछे छोड़ दिए जाएंगे। तो ये तो हमेशा होगा कि बीता हुआ कल उसकी कुछ अच्छाई होगी, उसकी कुछ बुराई होगी, आज के टाइम की कुछ अच्छाई होगी, कुछ बुराई होगी। तो हमें क्या करना है, जो अच्छाई चीज थी उसको ग्रास्प करना है और आगे बढ़ना है। जो बुरी चीज यस। थी उसको एक एक्सपीरियंस के तौर पे लेना है, उसके अपने अंदर रखना, उससे सबक सीखना और आगे लेना। अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं यार वो टाइम बड़ा अच्छा था जब हमने मैंने प्यार किया बनाई, यार वो टाइम बुरा यस। था जब मैंने ऐसा किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं ये सोचूं कि तब हमको फिल्म मेकिंग में बहुत ज्यादा मेहनत थी, तब सारी चीज रोल पे होती थी, हमको उस रोल की यस। एक एक कटिंग एडिटिंग में ढूंढने के लिए 3-3 दिन जाते थे, ए वन कटिंग। बट आज अगर देखो तो आपके हार्ड ड्राइव में सब कुछ है। यस। यस। ट्रू हर ट्रू। चीज देखो, हर चीज महंगी हो गई। तो जब हर चीज महंगी हो गई तो कॉर्पोरेट्स आपको प्रेशराइज करता ही है। तभी अगर हम फिल्म 150 दिन में बनाते थे तो आज कॉर्पोरेट आपको बोलता है 70 दिन में बनाओ। यस। बिकॉज चीजें फैल गई, चीजें महंगी हो गई। बस आपको ये देखना है कि आप जब फिल्म बनाएं तो आपको बहुत ज्यादा जो है वो बजट का ध्यान रखना है। इकोनॉमिकली यू हैव टू बी करेक्ट। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उरुषा जी, जब भी आप फिल्म डायरेक्ट करें आपके पास बाउंड स्क्रिप्ट होनी चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाउंड स्क्रिप्ट रहेगी तो आपको पता रहेगा कि आप क्या खर्चा कर रहे हैं। क्योंकि उरुषा जी, फिल्म रिलीज होगी, क्या आएगा कोई नहीं जानता। यस। बट क्या आपके प्रोड्यूसर का जा रहा है, क्या पैसा उसका लग रहा है, कॉर्पोरेट्स का पैसा क्या लग रहा है, इसके जिम्मेदारी एक डायरेक्टर की भी होनी चाहिए। यस। ये नहीं होना चाहिए कि ये सीन शूट किया, उसको एडिट करके डाल दिया डस्टबिन में, वापस से सीन शूट किया। यू शुड हैव योर बाउंड स्क्रिप्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। And you know, sir, जी। I always हाँ realize कि today's हाँ people are complaining, but you are always positive. आप हर एक चीज के बारे में एकदम पॉजिटिव होते हो। जैसे अभी यही चीज जो मैंने आपको पूछा, पीपल कंप्लेन कि यार पुराने जमाने में ये था अब नहीं है, बट यू स्टिल आर सो पॉजिटिव। सो ये पॉजिटिवनेस आप में कैसे आ जाता है? हर एक चीज के लिए कोरोना हो रहा है पॉजिटिव है, कोरोना हो रहा है हम डिजिटल में जा रहे हैं। एवरी टाइम यू आर पॉजिटिव एंड यू नेवर से बैड वर्ड अबाउट एनीबॉडी। मैंने ये याद किया है, आप सबका अच्छा और तारीफ करते हो। ये क्वालिटी कैसे आता है और कैसे, मतलब आप में इतना पॉजिटिवनेस कैसे? आई थिंक सो दिस क्रेडिट गोज टू माय मॉम एंड डैड। क्योंकि हम्म। जब हम बड़े हो रहे थे तो हम किसी चीज के बारे में कुछ बोलते थे तो तुरंत टोक दिया जाता था। ओ। मुझे एक बात बोली गई थी कि कर्मा नेवर लूजेस हिज एड्रेस। हम्म। सो आप सिर्फ अच्छा करो और यस। आगे चलो। यस। एंड और नेवर बी और नेगेटिव। और मुझे ऐसा यस। लगता है कि एक लाइफ लाइफ है ना, एक लाइफ है, यस। तो इसको यस। यार फुलेस्ट जियो, खुश होके जियो। क्योंकि जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें भी ढूंढ रहा है। यस। अगर तुम दुनिया में दुख ढूंढ रहे हो, अगर मैं तुम में कमी ढूंढ रहा हूं तो तुम मुझ में कमी ढूंढोगी। हम्म। बट अगर मैं कमी ढूंढ ही नहीं रहा हूं तो मुझे कमी ढूंढेगी नहीं, तो कमी मुझे क्यों ढूंढेगी। मुझे लगता है कि लाइफ लाइफ कंप्लीट होनी चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ब्यूटीफुल यस। लाइफ, तो लिव Hmm. फुलेस्ट देन, वेयर इज द So you प्रॉब्लम। are, yeah, nice, sir, मैं nice. मैं मैं ये बात कर रहा था कि एवरी डायरेक्टर शुड हैव बाउंड स्क्रिप्ट लाइक दिस। Mm-hmm. बिफोर दिस Yes, वो उसको सेट पे नहीं जाना चाहिए। yes, yes. हाँ जी, पूछिए। Nice, nice. Oh my God. मैं इस समय तो आपको सुनते रहती हूँ। So amazing. I mean इतना, I always think हाँ इस always positive. किसी के नेगेटिव बातें मैंने आज तक आपके मुंह से सीरियसली नहीं सुना. So and that's what the great quality you have, and that's what I learned from you also. So thank you so much. So I need to ask you कि how you, of course you are the writer also I think, yes. So डू यू चूज अदर स्क्रिप्ट ऑल्सो, या आप हमेशा कि खुद ही लिखते हो और खुद ही अपना टाइप का अपना ही मूवी नो बनाना नो, चाहते हो? आई प्रेफर माई ओन स्टोरी। हम्म।
द रीजन कि मैंने वो जिया होता है, मैं उसमें खूब ओके। डे नाइट, उसमें मुझे पता होता है कि मुझे क्या करना है। It's not harm if you're taking someone else's story or the idea or you're getting inspired from someone else. It's good thing. But मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि मेरा आइडिया हो, क्योंकि मैं बहुत टाइम उसमें देता हूँ। जैसे मैंने एक राजस्थान की लव स्टोरी डेवलप की है, तो मैं यस। करीब 1.5 साल ऑन एंड ऑफ ऑन माई ओन एक्सपेंस आई यूज टू गो टू जैसलमेर, आई यूज टू गो टू सम, आई यूज टू बी देयर, कि रात को सैंड ड्यून कैसा होता है, चंद्रमा में कैसा होता है, पूर्णिमा में कैसा होता है, अमावस्या में कैसा होता है, गर्मी में हम्म। कैसा होता है। तो मुझे थोड़ा सा होमवर्क, थोड़ा सा वर्कशॉप, जैसे मैंने अब हिटलिस्ट फिल्म बनाई थी, हिटलिस्ट में हम्म। जिन लड़कों को मैंने लिया था उन लड़कों में से एक पंकज त्रिपाठी भी था। यस बट यस। हम अमेजिंग। हमने फिल्म शुरू करने के पहले पता नहीं कितने महीने हमने वर्कशॉप किया। हम्म। अब जब मैंने पहली फिल्म बनाई हम तुम पे मरते, तो उसमें सारे सुपरस्टार थे, गोविंदा थे, उर्मिला वो। थी, डिम्पल हम्म। कापाड़िया जी थी, सब सुपरस्टार्स थे। बट मैंने क्या किया, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट की कि हम्म। अगर आप मुझे टाइम देते हैं, मैं ओवरऑल आपके शूटिंग स्पैन में से वो टाइम कम कर दूंगा, आई एम श्योर, पर एक बार एक हम्म। थोड़ा सा वर्कशॉप कर लेते हैं। क्योंकि हम्म। अगर मैंने वर्कशॉप नहीं किया, तो जब आप हम्म। मेरे फिल्म में कैरेक्टर अदा करने आएंगी तो आप आएंगी एज उरुषा पांडे। यस। बट एक डायरेक्टर को उरुषा पांडे नहीं चाहिए। हम्म। आपको मेरी, मैं फिल्म बना कैरेक्टर। रहा हूं, मेरी फिल्म में अगर एक नेपाल की ब्यूटी क्वीन है और उसमें आपको कास्ट किया गया, तो मुझे जब आप मेरे फ्लोर पर आओ तो मुझे वो ब्यूटी क्वीन दिखनी चाहिए। और वो बिना डिटेल्ड वर्किंग के, बिना वर्कशॉप लिए, हम्म। उसके मतलब नाइस। इन डेप्थ में जा नहीं सकते उस कैरेक्टर। Yes, yes. So, like you said, you prefer your stories, right? So, आप जब भी कुछ स्टोरी लिखते हो या स्क्रिप्ट लिखते हो, ये आइडिया आप कब सोचते हो और कैसे आपको आइडिया आ जाता है? How you get the idea? हाउ आई गेट द आइडिया, अगर आप बोलोगे तो Yes. मैं ब्यूटी, अभी मैंने ब्यूटी क्वीन बोला ना, हम्म। तो मैं अभी अभी एक शब्द मैंने बोला ना, ब्यूटी क्वीन, तो जब मैं बोल रहा हम्म। था तो ऑलरेडी मेरे माइंड में स्टोरी चल रही थी कि व्हाट इफ वाह। मैं मैं शूटिंग के लिए अगर एक ब्यूटी क्वीन को नेपाल से बुलाऊं, और मुझे नहीं पता हो कि एक साइको बहुत टाइम से उसको पीछा कर रहा है, और मैंने बुलाया उसको शूटिंग में, पर एक साइको ने उसको किडनैप कर लिया और फिल्म हम्म। की कहानी शुरू हो गई। वाह। Too creative. मतलब you are talking but still there is a story in your mind. ऑफ कोर्स दैट समथिंग इज गोइंग वाह। ऑन, कि हाँ यार, मैंने बोलते बोलते अच्छा बोला ब्यूटी क्वीन, अगर इसी को बुलाया मैंने और यहाँ पर इसका किडनैप हो गया, अगर किडनैप हो गया और फिर ढूंढना है, तो लवली। एक तरफ पुलिस ढूंढ रही है, अगर वो पुलिस को ढूंढने वाला मेरा बचपन का दोस्त हो, हम्म। ठीक है, राइट। और करते 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 मुझे मालूम पड़े कि जो किडनैप किया है वो मेरे ही पुलिस वाले दोस्त ने किया है। सी, अरे वाह। अभी क्या अभी स्टोरी। सर अगर ये किसी ने आपका स्टोरी ले लिया तो आई कैन से बिकॉज यू अभी क्या अभी यू क्रिएट ग्रेट स्टोरी। सो बी क्लैप टू एक यू। एक 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 मधुमक्खी का छत्ता तोड़ा जा रहा था, हाँ। तो जो जो रानी मधुमक्खी होती है वो दूर जाके बैठी थी, तो एक ओल्ड लेडी उसको पूछ रही थी, तुझे दुख नहीं होता है, हम्म। तेरे मधुमक्खी के छत्ते को कुछ लोग तोड़ रहे हैं। तो उस रानी मधुमक्खी ने कहा कि इनको यही आता है, हम्म। पर मुझे नया छत्ता बनाना आता है जो इनको नहीं आता है। नाइस या। ट्रू तो मैं ट्रू नया दैट। छत्ता बना लूंगा, बट इनकी आत्मा को पता होगा कि इन्होंने चोरी की है। ये कहते आपने स्टोरी लेटर भी सी डू ये ऐसा हुआ है आपके साथ? क्या आपने किसी को क्या क्या स्टोरी क्या, बोला बाद में आप देखते हो कि ये तो मेरा स्टोरी है इसने बना लिया? नहीं तब हुआ? तक मैं बहुत आगे आगे जा चुका होता। वाह। ऐसा ये जनरली डोंट। ऐसा जनरल ऐसा जनरली होता नहीं। अच्छा।
तो अभी जो आपने इतना वक्त बॉलीवुड को दिया है, सो कितने शूटिंग्स में आपके फन इंसिडेंट होता है ना, बहुत फनी इंसिडेंट, तो जैसे कि मुझे जो लगता है हम आपके है कौन में वो कुत्ता था, तो उसके बहुत इंसिडेंट होता होगा, तो वी लाइक टू हियर। ओ या एक इंसिडेंस बताता हूँ, क्योंकि ये डिपार्टमेंट मेरा था। बट आपको ये सब कैसे मालूम है कि यही सवाल पूछने चाहिए? मेरा एक सवाल है आपसे कि आपको कैसे पता कि यही सवाल पूछना चाहिए? सो बिकॉज आई वांट टू से यू, हम आपके है कौन इज माय फेवरेट मूवी, मुझे वो कुत्ता से बहुत प्यार है। आई लव डॉग्स, तो मैं सोचती थी ये कुत्ता कैसे ये फिल्म को कैसे शूटिंग किया होगा, यू नो व्हेन आई स्टार्ट शूटिंग, तो वो तो बहुत इट्स नॉट इजी टू डू शूटिंग विद डॉग, सो आई वांट टू आस्क यू अबाउट दैट। ठीक है, वो डॉग और वो कबूतर सब मेरे डिपार्टमेंट थे। तो एक शॉट था मैंने, जिसमें पूरी फैमिली यस, के लोग बैठे हुए हैं, और जो हमारा टफी हाँ, था, वो टफी राइट ऑफ कैमरा से जाएगा और लेफ्ट ऑफ कैमरा इस तरफ जाएगा। सो जब वो चल रहा था, तो अचानक सूरज जी के डैडी राज बाबू जी, मुझे हम्म। नहीं पता कि किसी ने आके मुझे पीछे से कान में कहा कि राजू जी, उसको बोलो दो पैर पे चले। चलते शॉट में बोल रहे हैं कि या उसको बोलो या दो या पैर पे चले। तो जो डॉग को या कमांड देते हैं, तो मैंने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और मैं हम्म, टफी को कमांड दिया। मैंने ऐसे कमांड दिया कि जो कोड था, ऐसे थाइस को दो बार टैप करके, तो वो उठ गया बेचारा और वो चलने लगा। वाह, और हाँ, वो शॉट ओके हो गया। तो शॉट ओके होने के बाद मैं इतना खुश हुआ कि मैं उसको प्यार वाह, से बुला रहा हूँ, कम कम कम। पर मैंने ये हाथ पकड़ा हुआ था। जब मैंने पलट वाह, के देखा ये हाथ, तो ये सूरज जी के डैडी का हाथ था, राज बाबू जी का। और मैंने हाथ छोड़ा और मैंने हाथ जोड़ा, हाथ छोड़ा और हाथ जोड़ा। हाँ, तो मुझे बोले नो नो नो, कोई बात नहीं, शॉट बहुत अच्छा था। सो ये yes, हमेशा हम लोग याद करते थे। फिर वो मुझे yes, बोलते थे कि तुमने बहुत जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया था। सो ऐसे कबूतर का भी होगा, मैंने प्यार किया में। कबूतर कबूतर। के किस्से, कबूतर के इतने किस्से अगर मैं सुनाऊंगा ना, खाली मैं एक ही बात बता देता हूँ हम्म, कि दरअसल आ, वो बहुत सीक्रेट है कबूतर के बारे में। बट कई बार ऐसा हुआ कि एक हाँ, उस कबूतर को जिसे हम छोड़ते थे, और वो उड़ता था, और वो इतना दूर चला जाता था कि उसको लाने के लिए हमको 4-4 घंटा वेट करना पड़ता था। और एक हम्म, बार ऐसा हुआ, ऊटी में हम शूटिंग कर रहे थे। तो ऊटी हम्म, में लॉन्ग शॉट लगाया था, और हम्म, मैं कैमरे के पास से कबूतर को छोड़ रहा था। मैंने कबूतर को उड़ाया और वो खेत में जाके बैठ गया। मैं हाँ। चलते शॉट में भागा, और भाग के मैंने कबूतर को पकड़ा, फिर उड़ाया। कबूतर उड़ रहा था, अचानक कैमरामैन लाड साहब थे, उन्होंने देखा कि मैं भी फ्रेम में हूँ। ओ, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू तो बैठ, तू फ्रेम में। तो मैंने ऐसे डाय डाय मारी। ऊटी की खेती ऐसे है पूरी। तो मैं आधा हम्म, मिट्टी में घुस गया था। मैं आधा मिट्टी में घुस गया। वो कोई बात नहीं है, शॉट पूरा हुआ। पर यूनिट का कोई भी आदमी मुझे मिट्टी से बाहर निकालने नहीं आया। हम्म, किसी ने भी ये नहीं बोला कि अरे राजू भाई, शॉट ओके हो गया है, प्लीज कम आउट। तो मुझे यस, लगा इतना लंबा शॉट कैसे, कोई मुझे बोल ही नहीं रहा है, और मिट्टी में था तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। यस, यस, So सो दैट, when you work with birds, when you work with animals, you have to be little sensitive. बाकी वो यस, अपना काम कर जाते हैं। yes, जी। true, true. So, sir, many people, especially when we are not into acting, we just see TV. जैसे बचपन में मैं भी हम आपके है कौन, मैंने प्यार किया देख के सपने देखती थी मुझे मूवी में आना है। बट लेटर वी गॉट कि कितना स्ट्रगल्स होता है, कितने दिन रात की मेहनत होता है। सो हम्म। आप ऐसा भी टाइम हुआ होगा ना कि कितने रात तक आप सो नहीं पा रहे हो, सो आपकी स्ट्रगल थोड़ा हम जानना चाहते हैं। चलिए, आप और मैं, हम लोग बहुत टाइम से जुड़े हैं। आपने बहुत सारे हम्म, हमारे कोर्सेज किए। मेरी हम्म, डिक्शनरी में ये वर्ड आपने सुना कभी? मैं स्ट्रगल वर्ड बोलता हूँ। नहीं, 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 यस, ट्रू, ये वर्ड
ये वर्ड कभी अभी तक मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, पर इस Yes. वर्ड में मैंने आपको Hmm. स्ट्रगल नहीं बोला मैंने आपको, Yes. है ना? Yes. तो ये स्ट्रगल नहीं है, ये एक्चुअली Hmm. आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम है। Right. वो टाइम जो आपको कुछ सिखा दे, वो गोल्डन टाइम है। देखिए, Hmm. अब पेंडेमिक कोरोना के टाइम सभी लोग घर बैठे, करेक्ट? अब Yes. इसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं Yeah. जो ये सोच रहे हैं कि जैसे ही कोरोना हटेगा तब हम लाइफ प्लान करेंगे। Hmm. उनके लिए वो सोच रहे हैं ये स्ट्रगल में और स्ट्रगल बढ़ गया, Yes. करेक्ट? Hmm. कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये मौका मिला ताकि हम अपने आप को और काबिल बना सके और अच्छा बना सके। Hmm. ये वो लोग हैं जो इस समय फ्यूचरिस्टिक प्लान कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सोच रहे हैं कि नई दुनिया का जो नया पर्दा खुलने वाला है, तो इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अब फॉर Hmm. एग्जांपल, अगर कुछ समय के लिए थिएटर बंद रहे, मान लीजिए, Hmm. तो लोगों ने अपनी एक्टिंग स्किल्स को थोड़ा सा रीडिफाइन किया। अब Hmm. वो ये सोच रहे हैं कि वेब सीरीज की एक्टिंग कैसे होगी। वेब सीरीज में अगर एक्शन लगेगा तो कैसा एक्शन होगा। अगर वेब सीरीज में थोड़ी सी रीजनल भाषा बोलनी पड़ी, Hmm. तो आओ थोड़ी सी रीजनल भाषाओं का प्रैक्टिस। आपने हमारी एक्टिंग के कोर्सेज किए, आपने देखा Yes. जब आपको प्रिसाइजली जब आगे आने वाली किस तरह की एक्टिंग्स होंगी, उन सारी Yes. एक्टिंगों से अगर जब जब आपको हम अवेयर करवाते हैं, तो आपने Hmm. देखा होगा प्रिसाइजली हम बोल। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब सीरीज एंड फिल्म एक्टिंग, सीरियल्स एंड फिल्म एक्टिंग? Hmm. तो देखिए, वही मैं कहने वाला था कि स्ट्रगल नाम की कोई चीज नहीं है। Hmm. जो वक्त आपको ये वक्त दे रहा है कि उसमें आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके, वो तो गोल्डन टाइम हुआ ना। Exactly. Also, sir, देखिए, अगर देखा जाओ स्ट्रगल इज वर्ड, तो स्ट्रगल तो हमेशा सब लोग कर ही रहे हैं ना। आज भी अमिताभ बच्चन आई जी कर ही रहे हैं। दे आर आई वर्किंग थिंक सो हार्ड। दिस करेक्ट। सो I think so. This perception is not right. I think so. This perception is yeah. not like right that I am struggling. Hurry, everyone is struggling. But you made your own definition of struggling. What do you mean by struggling? ऐसे हम बोलते हैं कि सक्सेस की डेफिनेशन हर आदमी के लिए अलग अलग है। तो So there is आपके no लिए struggle. every day you're progressing. Every day you're Yes. learning something. Lovely, lovely. Wow, sir, इतना positive इंसान. Great. And that's what I learned अरे today also, that every day is progressing, guys. There is no struggle at all. तो मुझे आपका एक इंसिडेंट पूछना है कि एक बार आपका बीबीसी का चलता हुआ चैनल ने आपको बुला लिया था, लंदन लंदन का था वो। सो बीबीसी ओ वो ओ क्या था? हाँ, देखिए बता मैंने एक फिल्म बनाई, हिट लिस्ट। हम्म. हिट लिस्ट में हमने सारे कुछ नए लोगों को लिया। हम्म. फिर उसके बाद हिट लिस्ट की जो कहानी थी, और यस. हिट लिस्ट में ये बोला गया था कि ये जो 6 लड़के मैं कास्ट करूंगा, इनको रॉ क्राइम एंड थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज क्राइम का अनुभव होना चाहिए। हम्म. इनको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि भाई ये रॉ क्राइम है। आपने कभी कॉलेज में गुंडागर्दी की हो, आपने कहीं मार कुटाई की हो, आपने हम्म. मुंबई का आपको कुछ पता हो, आपको कॉलेज की हम्म. गुंडागर्दी पता हो। हम्म. तो जब ये फिल्म शुरू की हमने, तो उसके तहत इंटरव्यू देने के लिए बीबीसी लंदन ने मुझे लंदन बुलाया। मैं लंदन गया, और जब मैं लंदन गया तो मुझे ये लगा था कि कोई शाम को फिल्मी प्रोग्राम में मैं एक वन ऑफ द गेस्ट होऊंगा। यस. पर जब मैं गया, उन्होंने बुलाया, तो अपन तो इंडियन लोग हैं ना, भारतीय। तो मुझे लगा वहां जाएंगे जाएंगे, बैठेंगे, चाय वाय आएगी, कोई पूछेगा, कोई कुछ होगा। यस. सो मैं गया, और उन्होंने जाते ही पूछा कि यू आर फिल्म मेकर फ्रॉम इंडिया, नव कुमार राजू। ऐसे दिया, बोले कम, वी ऑल वेटिंग फॉर यू। आई सेड वेयर? बोले इन न्यूज रूम। बोले योर टाइम इज ऑलरेडी स्टार्टेड, कम इनसाइड।
I said, but a glass of water or something. Well, no, please first you come inside. So they are hardcore professionals. I went inside. Oh, The moment yes. that the newsroom opened, when I saw 20 cameras, then I saw that Lees was a journalist. एंड यहाँ मैं लोगों को बता दूं कि क्यों वो कहावत है, एक कहावत है कि आप शिद्दत से जिसको चाहोगे वो जरूर आपको मिल जाएगा। पूरी Right. कायनात पूरी कायनात पीछे पड़ जाएगी, मतलब उसको आप तक लाने Mm, के लिए। सो जब मैं mm, कॉलेज में था, तो जब ईरान इराक का वॉर हुआ, तो बीबीसी mhm, लंदन हमेशा मेरा फेवरेट चैनल था। और तब ये mhm, जर्नलिस्ट लीज इराक में थी, mhm. और मैं तब अपने हॉस्टल में लीज की आवाज सुनता था। Oh, तो yes. मैं लीज को पता नहीं कितने साल से 20 ईयर से फॉलो कर रहा था। और द Yes. मोमेंट वो न्यूज रूम का दरवाजा खुला और मैंने वो मिस लीज को सामने देखा, तो मैं भूल ही गया कि मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, क्या बोलने आया हूँ। एंड शी सेड, कम कम कम, सिट, वी आर ऑलरेडी रोलिंग, वी आर Oh, स्टार्टिंग। आई सेड, बट लिसन मैम, लिसन, वन थिंग, my first language is Hindi. Well, you don't bother about Hindi, English. Don't worry. And she started rolling yes. 10, 9, 8, 7. The moment she started rolling 10, 9, 8, 7, the palpitation was very, very high. Like Mm. अभी भी आप जो बोल रही हैं, तो एक्शन कट Mhm. के लिए तो ठीक है, अपन एक्शन कट कर सकते हैं, बट ऐसे इंटरव्यू देना ये बड़ा डेंजर काम। Yeah. So that, हाँ, Yeah. so then after that I told Lise, we sat Yes. together, I speak with her, and then I said कि you never give me time to even think, बोले don't worry. But वो क्या कर रही थी मुझे, she was so cute that वो पेपर पे नीचे लिख के दे रही थी, my next question will be this. तो मेरे लिए था कि मैं Oh, नीचे देखूं या मैं सामने देखूं, नीचे देखूं या मैं सामने देखूं। तो so nice. ये And I'm so happy, sir. Someone like you, the great filmmaker who had been already called by BBC channel from London, is right now in my show, in live show. So thank you so much, sir, to come in for my my show. pleasure. So, so do you like those filmmakers जो remake करते हैं movies का? Why not? Why Hmm. not? देखिए, हमको एक परसेप्शन से नहीं देखना चाहिए किसी चीज को। Yes. हमें बहुत सारे परसेप्शन से वी हैव टू सी। वन परसेप्शन इज गुड फिल्म, अनदर परसेप्शन इज इफ यू वांट कि ये इंडस्ट्री चले, Hmm. ये इंडस्ट्री ग्रो हो, तो उसके लिए Hmm. पैसा भी चाहिए ना। Yes. 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 True. अगर एक फार्मूला कहीं साउथ में हिट हुआ है, अगर उसी Hmm. फार्मूला के ला के, मान लो अगर मैं एक फिल्म बनाता हूं, और उसको, उस फिल्म को बनाने से अगर मैं Hmm. 200 दिन शूटिंग करता हूं, और 200 दिन में Hmm. 500 लोग पर डे 500 लोग शूटिंग में होते हैं, और पर डे Hmm. 500 लोगों के घर में पैसा जाता है, तो आप जस्ट इमेजिन करके देखो कि वो 500 लोगों के घरों में अगर दिया जलता है, रात को खाना मिलता है, Yes. Yes. तो यू अंडरस्टैंडिंग कि ग्रो हो रही ना चीजें। Yes. हेलो, कैन यू हियर मी? Exactly. Exactly. Yes, sir. Yes. हाँ, So, हाँ, do you have any movies जो क्लासिक मूवीज हो कि आप चाहोगे कि मैं इस क्लासिक मूवी को रीमेक बनाना चाहूंगा, ऐसा कुछ मूवी है आपके पास जो आप चाहोगे? हाँ, हाँ, है, जरूर है, जरूर है। मेरी वो मोस्ट फेवरेट फिल्म, माई फर्स्ट फिल्म, एंड दैट इज अखियों के झरोकों से, एंड माई हम्म। सेकेंड मूवी, साउंड ऑफ म्यूजिक। अच्छा। बिकॉज, नाइस नाइस। हाँ, मुझे म्यूजिक का बहुत यस शौक है, तो मुझे हमेशा की, आप लोग जरूर वो यस फिल्म देखिएगा, साउंड ऑफ म्यूजिक। और जरूर आप लोग यस। अखियों के झरोकों से फिल्म देखिएगा। वो मेरी पहली फिल्म है हम्म जो थिएटर में जाके हम्म देखी थी मैंने, एंड आई वॉज इन लव विद दैट हम्म मूवी। एंड बेस्ट पार्ट, हम्म जिस कंपनी में मैंने फिल्म मेकिंग सीखी, राजश्री हम्म प्रोडक्शन, उसी हम्म। कंपनी ने वो फिल्म बनाई थी। Wow. And so you start with Rajshri, na? You start with Rajshri production. यस, 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 So when you, yeah. यस। So
Yeah, their movies are like कि हमेशा फैमिली टाइप का मूवी एंड ऑल दैट. डोंट यू थिंक आजकल फैमिली मूवीज हाँ, थोड़ा कम हो गया है? फैमिली में मूवी आना कम हो गया, ऐसा आप कह रही हैं? यस. हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, लेकिन पहले भी अगर यस आप सर, यस. देखेंगी तो फैमिली फिल्म, हम्म. अगर आप पहले भी देखेंगी तो फैमिली फिल्म उतने ही इंटरवल में आती थी। लाइक हमने मैंने प्यार हम्म. किया बनाई, मैंने प्यार किया बाद जब हम आपके हैं कौन बनाई तो ऑलरेडी 5 साल का गैप था। फिर हम आपके यस हैं कौन यस के यस. बाद अगर अगर आदित्य चोपड़ा ने दिलवाले बनाई तो भी आप देखो थोड़ा सा टाइम हो गया था। तो क्या होता है यस. कि हमेशा उतने इंटरवल्स में आती, पर अभी क्या होने लगा, जो फैमिली की बहुत सारी सीरियल्स आ गई है ना, ट्रू ट्रू ट्रू. यस. यस. तो वो रिक्वायरमेंट वहां यस से पूरी हो राइट. जाती है। हाँ। हाँ हाँ हाँ. राइट राइट. सो सर, आपने इतने हम्म। एक्ट्रेस के साथ काम किया है, सो हु इज योर फेवरेट? और ये देखिए, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मेरे सारे जो एक्टर एक्ट्रेसेस फ्रेंड है वो फिर मेरे पे चिल्लाएंगे। तो ऐसा नहीं, जिन लोगों के साथ काम किया, सो यू कैन. जिन लोगों के साथ काम किया, हाँ. हाँ हाँ, जिन लोगों के साथ काम किया, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उन लोगों ने अपने रोल को बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया। अगर वो मैंने हम्म. प्यार किया की हीरोइन थी भाग्यश्री, उसने बहुत अच्छा किया। यस. माधुरी दीक्षित, काजोल, उर्मिला, जितने लोगों के साथ काम किया। और देखिए, जब मैंने इंडिपेंडेंट फिल्म बनाई तो मेरी पहली फिल्म में कौन था? गोविंदा। टैलेंट का ही इज सुपरस्टार, अमेजिंग. टैलेंट का सुपरस्टार। या. उसके बाद मैंने दूसरी फिल्म बनाई, हम्म. किसके साथ बनाई? आशुतोष राणा जी के साथ, अगेन एक्टिंग का सुपरस्टार। तीसरी फिल्म हिट लिस्ट बनाई, किसके साथ बनाई? पंकज त्रिपाठी, अगेन एक्टिंग का सुपरस्टार। तो आप देखिए, हम्म. मतलब मैं अब कैसे, अब गोविंदा को अगर मैं आशुतोष राणा जी से कंपेयर करूं, आशुतोष राणा जी को अगर मैं पंकज त्रिपाठी से कंपेयर करूं, सो कोई कुछ होगा ही नहीं ना। कल को जैसे जब गॉड विलिंगली जब हम लोग काम करेंगे तो मैं आपको कंपेयर नहीं कर सकता। आप हैं। Exactly. सो वो बात Yes, है। yes, yes. Everyone have their speciality, ना? You mean? Yes. सॉरी So, सॉरी, कम अगेन। अभी जो pursue करना चाहते, you mean कि everyone have their one speciality. सब में अच्छा अच्छा पन करेक्ट। करके quality है जो you can't compare. Yes, and देखिए, I completely understand that. जब तक आप में वो प्रोफेशनल एथिक्स नहीं होगा ना, आप उस ऊंचाई पे पहुंच नहीं Yes. सकते। आपको जिंदगी में बड़ा Hmm. बनने के लिए ऐसा कोई गुण आप में होना चाहिए, तभी आप बड़ा बनते हैं। आपके अंदर एक ऐसा बड़ा गुण होता ही है। तो वो जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं, Hmm. वो तो बहुत कॉमन बात है और वो इन सभी लोगों में है। अगर आज अमिताभ बच्चन जी Yes, yes, आज इस स्टेज पे भी 7 बजे की शिफ्ट में अगर 7 बजे पहुंच जाते हैं तो और क्या yes. चाहिए? जी। Exactly, exactly. True. So, sir, अभी ये जो new filmmakers है, those people who want to be the filmmakers and want to pursue the filmmakers, what do you want to say to them? कि how should they start? ओ, फर्स्ट ऑफ ऑल Mm, yeah, दे शुड नो, दे शुड नो कि व्हाट दे आर मेकिंग। yes, आपकी फिल्म में आपको कहना क्या है। देन उनके पास बाउंड स्क्रिप्ट के साथ उनको इकोनॉमिक्स का ख्याल रखना चाहिए। अगर yes. आपकी 2-3 फिल्में लॉस में जाएंगी, आप बजट क्रॉस किया और Mm, रिलीज से पहले अगर वो mm, आपने 10%, 20%, ठीक है, 30% ओके, बजट यहाँ वहां हुआ, पर जो बजट आपने आपकी कंपनी को दिया था उस बजट में ही आप कंप्लीट करें। और correct, तीसरी बात, yes. जब आपकी फिल्म रिलीज होती है तो आप उसको Mm, जरूर एनालाइज करें कि चली तो क्यों चली, नहीं चली तो नहीं चली, क्यों नहीं चली। वो फिल्म जो भी आप बना रहे mm, हैं ना, वो फिल्म पहले आपके भीतर बननी चाहिए। exactly, yes. And also जी। same thing with जी। as an actors also कि उनको भी पता होना चाहिए कि acting that.
हाँ कि एक्टरों One की thing I बात कर want रही to है ना। ask कि yes, one thing I want to ask कि एक क्वेश्चंस होते हैं हर एक लोगों के माइंड में ना कि बिफोर joining the movies they think कि shall I go academy or no, फिल्म मेकिंग का एकेडमी में जाऊं कि नहीं जाऊं. So everyone have that question कि मैं थिएटर जाऊं कि मैं कहाँ जाऊं, so I'm sure ये बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अभी ये वॉच कर रहे हैं. So I want you to answer कि क्या करो जब तुम फिल्म में जाना चाहोगे, या बॉलीवुड मूवीज हो या कहीं का भी मूवीज हो, what you need to do to go on that platform. ओके, So I know देखो already एक answer पॉइंट तक because I have taken the classes. एक पॉइंट That तक is, एक पॉइंट तक आप एक पॉइंट तक आप एक्टर mm, एक पॉइंट के बाद आने के बाद उसके दो रास्ते होते हैं। एक yes, रास्ता थिएटर को जाता है और एक रास्ता बॉलीवुड एक्टिंग की तरफ आता है। yes, अब बॉलीवुड एक्टिंग सिर्फ आपसे नहीं होगी। बॉलीवुड एक्टिंग में आपको क्या सीखना है? शूटिंग कल्चर, कैमरा, yeah, एडिटिंग, डबिंग, ये सब कैमरा कैसे फेस करें, ये सब आपको आना पड़ेगा। उसके बाद exactly, जब आपको बॉलीवुड अभिनय की बेसिक चीजें आ गई, बॉलीवुड एक्टिंग की, उसके बाद आपको क्या है कि आपको पहचानना है कि आप कौन सा एक्टर है। आप रियलिस्टिक एक्टर हैं, आप मेथोडिकल एक्टर हैं, आप कंटेम्पररी एक्टिंग करते हैं, आप क्रॉस ओवर एक्टिंग करते हैं, आप एक्चुअली हैं कौन, या आप एक कंप्लीट एंटरटेनर है गोविंदा जी की तरह। ये सारा होमवर्क yes, आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड बन सकेंगे। exactly, अब उरुषा जी, मुझे दुख ये होता है कि जब यहाँ पे लोग आते हैं, ये yes, बेसिक वजह रही कि जिसकी वजह से हमने बॉलीवुड अभिनय ये एकेडमी खोली। मुंबई आने के बाद exactly, जैसे मुझे किसी का फोन आता है कि राजू भाई देख लेना, वो मेरे चाचा का लड़का आया है। मैं कहता हूँ ठीक है, उसको घर बुलाता हूँ, मैं mm, मिलता हूँ कि कितने साल से mm, मुंबई में। वो बोलता है मैं 4 साल से mm, मुंबई में हूँ। मैं कहता हूँ ओके, mm, क्या कर रहे थे तुम? तो वो कहता है मैं एक्टिंग सीख रहा था, मैं थिएटर कर रहा था। yeah, yeah, थिएटर, yeah, अगर आपके पास टाइम है आप थिएटर में, कोई बुरी बात नहीं है, पर मेरी बात exactly, समझिए कि मुंबई yes, आने के बाद आप एक्टिंग सीख रहे थे। आप मुझे mm, बताइए कि मुंबई आने के बाद एक तरफ एक नदी है और एक तरफ समुद्र है। yes, आपको जाना समुद्र में है और वहां आके आप कह रहे हो मैं नदी में तैरना सीख रहा था। नहीं, true, true, आपको true, right, आप देखिए फिशर मॉन्गर किधर होता है? फिशरमैन कहां पर होता है? सी में। yes, किसान कहां होता है? फील्ड पे। yes, तो बॉलीवुड एक्टर को कहां होना चाहिए? बॉलीवुड में, फिल्म yes, फ्लोर पे, फिल्म शूटिंग पे, एडिटिंग पे, रिकॉर्डिंग पे, exactly, डबिंग पे, स्टोरी सेटिंग्स पे। तब आप जाके आके बॉलीवुड के एक्टर बनोगे ना। सो वापस मैं yes, कहता हूं कि एक पॉइंट के बाद आप एक्टर हैं, पहले आप एक्टर हैं। एक्टर के बाद आपके रास्ते दो अलग हैं। yes, एक आप थिएटर की तरफ जाओगे, एक आप बॉलीवुड एक्टिंग mm, की तरफ आओगे। कुछ लोग ऐसे yes, हैं, नसरुद्दीन शाह भाई जैसे, जो दोनों को क्लब करके चलते हैं। बट okay, yes, दे अंडरस्टैंड बोथ द मीडियम, दे अंडरस्टैंड difference, yeah, बोथ। हाँ, यस। तो वैसा आपको yes, बनना है। exactly, true, true. So let's talk about your future project. अभी आप future project क्या कर रहे हो? And then we want to talk about Bollywood अभिनय and your last words फिर हम बने रखते हैं. देखिए, अभी हम लोग फिल्म कंप्लीट करेंगे, उसका नाम है राधे। ठीक है। Yes, yeah, उसके 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 बाद अ, थोड़ा सा ही मैं रिवील करूंगा। मेरी एक सिंगापुर की कंपनी से बात चल रही है, उनके लिए मैं एक वेब सीरीज बनाऊंगा। और mm, उस वेब सीरीज के लिए ऑलरेडी बैक एंड पे मेरी टीम काम कर रही है। हम लोग yes, उसकी बाउंड स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। दूसरा जो मेरा हमारी जो एकेडमी है बॉलीवुड अभिनय, उस बॉलीवुड अभिनय का हमारा अपना एक वेब सीरीज आ रहा है। mm-hmm. तो उस वेब सीरीज का हमने करीब हमारे 9 उसके जो है वो एपिसोड्स आएंगे। तो उसमें से 5 Nice, की ऑलरेडी ऑलरेडी राइटिंग हो चुकी है।
और Wow. बाउंड स्क्रिप्ट होते ही और जैसे ही हम बाकी की शूटिंग कंप्लीट करेंगे तो मैं बॉलीवुड अभिनय की वेब सीरीज शुरू करूंगा। Wow, sir. I hope I will meet you soon. I want to work with you. और आपको मैं बता दूं कि जो बॉलीवुड अभिनय की जो वेब सीरीज लिख रहे हैं, यू विल बी शॉक कि वो लोगों ने आपके साथ ही उसी बैच में एक्टिंग और आप ही की बैच के हैं वो। आपको याद होगा एक धर्मेंद्र दवे जी थे राजस्थान से, Nice, nice. एक शिवांगी मिश्रा जी थी, Yes, yes, विपासना जी yes. थी, याद है एक रमेश जी थी। तो ये वो चारों लोग हैं जिनके Yes. साथ राइटिंग हो रही है। तो आप जब Amazing. शाम को फोन करती हैं कभी कभी, तो आपने देखा होगा 9 से 12 1 बजे तक जो हमारी ऑनलाइन सिटिंग Yeah, चलती है वो हम वेब सीरीज ही लिख रहे होते लिख रही थी. Yes. हैं। I जी hope जी। sir कि आपका ये काम अच्छा जाए, and I hope कि I हाँ will also get opportunity to work with you soon. And आ, because आप you know, आ, हाँ हाँ yes. मैं बोल लेता हूँ। आप देखिए, आप नेपाल में हैं। नेपाल Yes. की भूमि को बहुत ज्यादा मतलब पवित्र और प्योर माना जाता है। Yes. तो मैं हमेशा आपसे क्या कहता हूँ, ठीक है आप शिव जी के मंदिर चली जाना, आप हम सब के लिए प्रे करना। Yes. सो बॉलीवुड अभिनय के लिए और हमारे सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आप प्रे करना। एग्जैक्टली सर, जी ऑफ कोर्स सर। और आप खुद ही एकेडमी जो बॉलीवुड अभिनय है ना, आप मतलब क्या बोलो, समुद्र बोलो, क्या बोलो, आपसे बात करते रहेंगे ना, हम इतना कुछ हर एक चीज के बारे में सीख सकते हैं, लाइक फिल्म मेकिंग, राइटिंग, सो अमेजिंग। तो इस माय अपॉर्चुनिटी कि मैं आपसे मिली, आपसे इतना सीख पाई, एंड नाउ आई होप कि मैं वहां आऊँ और आपसे काम भी कर पाऊँ। और मुझे एक चीज विश्वास है, मैं आपसे जब काम करूंगी, आई विल लर्न एवरीथिंग अबाउट बॉलीवुड अभिनय, मतलब जो बॉलीवुड एक्टिंग चाहिए, मुझे बहुत कुछ आपसे सीखना मिलेगा। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। सो सर, जाने से पहले आपका लास्ट वर्ड्स जो आप यहाँ जो भी अभी आपको देख रहे हैं कहना चाहोगे? मैं बस सभी को एक ही चीज कहना चाहता हूँ, लिव लाइफ फुलेस्ट। देखिए मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ और उन बातों में ऐसा है कि जैसे मैं और पीछे चला जाता हूँ और मैं बताता हूँ कि हर आदमी की अपनी एक जर्नी है, वो अपनी जर्नी कर रहा है और वो जरूर वो जो सोचता है वो वहां तक पहुंच जाएगा, बट ही हैज टू बी पैशनेट अबाउट इट, ही हैज टू बी वेरी वेरी फोकस अबाउट इट। और कौन यस। क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, वो मत सोचिए, बस आप आगे चलते जाइए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब हिट लिस्ट हम बना रहे थे, तो यस। हिट लिस्ट में जो एक्टर्स का हमने सिलेक्शन किया था, उन सारे हमारे एक्टरों में इतने बढ़िया बढ़िया एक्टर थे, हमने करीब 6 महीना वर्कशॉप किया था। तो उस एक्टरों को अभी आप मेरे आगे की वेब सीरीज में देखेंगे, एक अमित नायर थे, एक सक्षम दाइमा थे। मैं आपको बताता हूं, सक्षम दाइमा इज अ फैंटास्टिक एक्टर। क्या हुआ, ठीक है पंकज पहले क्लिक हो गया, अमित थोड़ा टाइम बाद क्लिक हुआ, अमित मेरे साथ दबंग 3 में था, सक्षम दाइमा बहुत अच्छा काम कर रहा है। पर इन सारे लोगों को आप कहीं ना कहीं देखेंगे बड़ा बनते हुए। तो क्या होता है हमारी लाइफ में, किसी को जल्दी ब्रेक मिल जाता है, यस। किसी को टाइम लगता है, पर मेरा यही कहना है कि आपको घबराना नहीं है। यू कीप गोइंग, यस। यू यस। कीप गोइंग। इट्स ऑल अबाउट टाइम, हर एक लोगों का वक्त आता है। इट्स ऑल अबाउट यस टाइम एंड तो राइट। सो दैट्स व्हाई इवन आई आल्सो थिंक सेम। सॉ पता नहीं कहाँ से तुम्हारा किस्मत खुलेगा, तो जस्ट कीप गोइंग एंड डू whatever you can from whatever you have. And one thing sir, when I was checking your Facebook, the way you, even through Facebook, you motivate everybody, the course you writing, तो इतना मतलब आपको समझना भी पहले तो टाइम लगेगा, और जब इंसान अगर आपको समझेगा ना, देन दे विल बी लाइक ओ माय गॉड। सो दैट्स व्हाट आई विल लर्न फ्रॉम योर फेसबुक पोस्ट आल्सो, कि स्टार्ट फ्रॉम where you are, what you have. So that's what we are doing today. I'm starting with the phone, and I am in Nepal and doing the show. So I hope it will go great. So thank you so much यस, sir. you're welcome.
अगेन मैंने कहा ना, बात करेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी, बट मैं Yes, यही yes, कह रहा हूँ कि अभी यहाँ आने के लिए मुझे नहीं पता कि मैंने आपको और अपने साथियों को कितना इंस्पायर किया, बट आपने मुझे बहुत इंस्पायर किया। ये कमाल बात है, तभी तो मैं इतना बोल पाया। देखिए आप, yes, मैं वापस कहता हूँ कि आपकी जो चैनल है आपका, डायनामिक्स, ये देखिए कितने डायनामिज्म में काम करता है। यू आर mm, इंस्पायरिंग। मतलब अब देखिए आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। आगे आने वाले टाइम में वन वर्ल्ड वन टैलेंट। yes, अब कोई yes, सीमा, कोई सीमा में है नहीं। इट्स वन वर्ल्ड वन mm, टैलेंट। इफ यू आर टैलेंटेड तो आप नेपाल से स्पीलबर्ग तक पहुंच सकती हैं, यहीं से आप किसी के पास भी पहुंच सकती हैं। ये सब true, true, डिपेंड करता है आपके ऊपर। yes, ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो thank ये you. डिपेंड करता है आपके ऊपर। यस, तो मेरा अभी ऑलरेडी हैव टू स्टार्ट माय आपका अभी इवनिंग क्लास है, I इवनिंग know, क्लास। and thank you so much for giving us time. Bye bye, sir. Thank you, बाय, thank यू you. टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, Yes. बाय बाय। बाय। So guys, thank you so much, and I'm so sorry that we get late today because of some technical problem, and it was heavy raining also here in Nepal. But now the thing is about the lesson that we learned from Mr. Navkumar Rasto, and he's amazing. More you, if you have start talking more, then you will be like, let's talk more, you know. जितना आप उनसे बोलते जाओगे उतना ही आप और लंबा होता जाता, but we are it's about. Actually, it is about a half hour duration ka interview, but I think it goes 1 hour also. And thank you so much for listening us. And we will come back with another great personality. It will upload in on YouTube channel also as Supi Multimedia. So don't forget to subscribe the channel. And thank you for watching us. Thank you for encouraging us because, like he said, you guys are also my inspiration.